वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल क्लास 10th इंग्लिश दर्शन इंडिया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के लिए नेल्सन मंडेला चैप्टर की एनसीईआरटी बुक की रीडिंग। फर्स्ट पार्ट हम इस रीडिंग का पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आप क्लास 10th इंग्लिश दर्शन इंडिया यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned the courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. इट मीन्स स्टूडेंट संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से मैंने साहस का सीखा। समय समय पर मैंने पुरुषों और स्त्रियों, आदमियों और औरतों को एक सिद्धांत के लिए खतरा मोल लेते हुए अपने जीवन की कुर्बानियां देते हुए देखा है। मैंने पुरुषों को हमले एवं यातनाओं को बिना झुके हुए, यातनाएं होता है स्टूडेंट्स, परेशानियां दी जाती थी उनको, लोगों को ताकत और दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए देखा है। उनको परेशानियां झेलते हुए भी वो सहते गए और अपनी दृढ़ता का प्रदर्शन करते गए, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती स्टूडेंट्स, जिसको आप सोच भी नहीं सकते, उतना उनको परेशान किया जाता था पहले लोगों को। मैंने सीखा कि साहस निर्दयता का ना होना नहीं है, बल्कि डर पर विजय प्राप्त करना है। वह व्यक्ति बहादुर नहीं होता जो डरता है, लेकिन वो व्यक्ति बहादुर होता है जो उस डर पर विजय प्राप्त कर लेता है, मीन्स उस डर को जीत लेता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से दूसरे व्यक्ति से उसकी चमड़ी के रंग अथवा उसके काम से उससे घृणा नहीं करता। लोगों को घृणा करने के लिए घृणा की शिक्षा दी जाती है। यदि वे घृणा करना सीख जाते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि मानव हृदय में घृणा के बजाय प्यार की भावना ज़्यादा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। जेल के दौरान गंभीरता समय में भी जब मेरे साथियों और मुझे असहनीय यातना दी जाती थी, मीन्स परेशानियों का सामना करना पड़ता था, मैं एक संतरी में मानवता की झलक देखा करता था। संतरी मीन्स होता है स्टूडेंट्स गार्ड। शायद एक सेकंड के लिए, लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने के लिए, मुझे जारी रखने के लिए पर्याप्त थी। मनुष्य की नेकी, अच्छाई एक लौ है जिसे छुपाया तो जा सकता है, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता स्टूडेंट्स। In life, every man has twin obligations: obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. In civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his peoples was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. A twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way what I could know. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. इट मीन्स स्टूडेंट्स, जीवन में प्रत्येक आदमी के दो कर्तव्य होते हैं। एक अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता, अपने पत्नी बच्चे के प्रति, और दूसरा अपने देश, अपने समुदाय, अपने कम्युनिटी के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति। एक सभ्य एवं मानवीय समाज में जो लोग होता है स्टूडेंट्स, वो अपने दोनों कर्तव्यों को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए दोनों कर्तव्य को पूरा करना लगभग असंभव मीन्स इम्पॉसिबल था स्टूडेंट्स। दक्षिण अफ्रीका में जो इंसान एक इंसान की तरह रहने की कोशिश करता था, उसको पनिश किया जाता था, दंडित किया जाता था, उसे अलग कर दिया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में ऐसा व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करने की कोशिश करता था, उसे उसके परिवार और उसके घर से अलग कर दिया जाता था और उसे एक अलग जीवन बिताने के लिए मजबूर किया जाता था। रहस्य और विद्रोह के हल्के
का तूफान लोगों पर छा जाता था। परंतु अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में मैंने पाया कि मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में जिम्मेदारी निभाने से रोका गया था। मैं आज़ाद होने की चाह के साथ नहीं जन्मा था, मैं आज़ाद पैदा हुआ था और इस तरह से आज़ाद हुआ जो मैं जान सकता था। मेरी माँ के पास, कुटिया के पास दौड़ने के लिए आज़ाद, मैं गाँव से होकर गुजरने वाली नदी में तैरने के लिए आज़ाद, तारों के बीच नीचे भोजन पकाने के लिए धीमे चलने वाली बैलों की पीठ पर सवारी करने के लिए मैं आज़ाद था। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था और कबीले के रिवाजों को माना था, मैं आदमी या भगवान के